any minutes of the week cannot go without mentioning the banking and financial services. But Ashish, before coming to digital payments, let's talk about bank privatization. Bank privatization was a big focus for the government in this budget also. Do you hear any latest buzz? This week was the week for bank privatization because a source-based story came out from Reuters and everybody picked it up, and that is the reason this is also a very important week which saw the Sensex breaching 52,000. Correct. 50,000 क्रॉस करने में इतने साल लग गए, 50 से 52 जाने में 1 महीना लगा। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस खबर को, जो एक खबर काइंड ऑफ बिलीवेबल है क्योंकि इसमें 4 मीडियम साइज बैंकों का नाम आता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये सब स्पेकुलेशन के घेरे में है, लेकिन डायरेक्शन इसी तरफ है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आउट अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ लार्जर बैंक का मतलब क्या है पॉलिटिकली? लार्जर बैंक मींस लार्ज एम्प्लॉय यूनियन। लार्ज एम्प्लॉय यूनियन मींस दे कुड बी अ बिगर चैलेंज ऑफ प्रोटेस्ट। अभी फार्मर प्रोटेस्ट के आसार अभी भी चल रहे हैं सरकार पे। सो द रिस्क साइड इज व्हाई शुड यू ओपन समथिंग एल्स कि कल को कोई और लोग बैठ जाएं धरने पे? तो बेटर है लेट्स ट्राई आउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्मॉलर बैंक। सो इन 4 में भी शायद 2 को पहले लिया जाएगा, और ऐसा नहीं है इन 4 में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम है। बैंक ऑफ इंडिया में करीब 50,000 का वर्क फोर्स है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000 लोग काम करते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 है। अगर ये सारे में 2 बैंक भी जुड़ जाएंगे, और बिलीव मी प्रोटेस्ट है स्टार्टेड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दफ्तर के बाद मुंबई में ऐसी खबरें हैं, आप बता सकते हैं कि वहां के एम्प्लॉइज ऑलरेडी बैठ गए हैं बाहर बैंक के धरना देने के लिए। बट हमारा क्या होगा? Ashish, bank privatization will take its own time, and of course you are correct in highlighting the political economy, but if I talk about the economics of politics, okay, NPCI, if we talk about digital transactions, it is reaching to 1 billion transactions per day almost. ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC, they wanted to form a consortium of digital payments against NPCI. Now NPCI is of course National Payments Corporation of India, और इसमें 24% स्टेक SBI का खुद है। लेकिन NPCI में इतने सारे पेमेंट इश्यूज आते हैं, इतने बग्स हैं, और there are a lot of interface issues which a lot of consumers are facing these days. So it is also speculative. Now again, this is a speculative story which is doing the rounds in the business community, that all the major banks will start their IT divisions separately. Like SBI will start its own SBI IT division instead of just only operating as a bank. And this IT division will also start giving services of IT to other clients. And it is a high time that such things should be put in force, because अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले खबर की बात थी कि RBI ने HDFC जैसे बड़े बैंक को कहा था कि आप अपने डिजिटल क्रेडिट कार्ड देना आप बंद कीजिए, आपके बैकएंड में इश्यूज आते हैं, हैंग हो रहा है, ब्रीच हो रही है। इससे these are all indicating, if you join the dots, it is high time that bank should have a dedicated professional set of people managing the back end, because जैसे जैसे हम लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी से तादाद जा रहे हैं, आज के दिन में 1 महीने में करीब 4 लाख करोड़ 4.5 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहा है सिर्फ डिजिटल से, और यूपीआई के थ्रू उसका ज्यादा हिस्सा यूपीआई के थ्रू है। इट्स हाई टाइम दैट एनपीसीआई, if it is putting in place, and I am sure that there would be some iota of truth behind that, they have to modernize, upgrade and remove all the bugs, because the IT servers need to move. We will start losing faith and we go back to where? The same thing, cash transaction, check transaction. Exactly. In fact, last week SEBI came up with a notification for mutual funds, and a lot of investors who were transacting through UPI interfaces and NPCI, their money got stuck. NPCI just issued an apology. बट अपॉलॉजी कम्स लेट। आप किसी के पैसों के साथ मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये अलग बात है, बट एनपीसीआई का इस तरीके से पेमेंट के साथ खेलना थोड़ा सा विल नॉट गो वेल डाउन विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर कम्युनिटी। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, सी अभी 4 तरह के मोटा डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस विच हैज द लार्जर शेयर, देन इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आईएमपीएस हम और आप डेली यूज करते हैं। इमीडिएट बैंक से पैसा भेजना है, 2 रुपए मुझे आपको ट्रांसफर करने, रियल टाइम में चले जाएंगे। थर्ड थिंग इज आधार इनेबल्ड, एईपीएस, और फोर्थ चीज है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो ऑब्वियसली वहां प्रॉब्लम आई थी अभी जहां पे लोगों के पैसे अटक गए थे और अपॉलॉजी देनी पड़ गई थी। सो जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है सिस्टम पे, ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, और अब जैसे हमने ई कॉमर्स की बात की, लोग और जुड़ेंगे और ट्रांजैक्शन होगा और छोटे शहरों से और छोटे शहरों में जाएगा ये। Correct. This is high time. This is perhaps the time where this year should be devoted towards upgrading all these stuff and removing the bugs. The bottom line is that the government does need to enhance its
its digital payment interface. Otherwise, the shine and sheen of Digital India, people shifting to digital payments, more people filing ITR returns will soon fade away.